हरे कृष्णा। सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। आज हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें क्यों पढ़ना चाहिए और इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हाउ टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स एंड व्हाई टू रीड ओनली श्रील प्रभुपाद बुक्स, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय के ऊपर चर्चा करने से पहले एक श्रीमद् भागवत का ही एक श्लोक हम पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ इसकी पुनरावृत्ति कीजिएगा। तद्वाग विसर्गो, अच्छा इससे पहले आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुं दीनतारिणम्। इस श्लोक को मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः।
मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है ना? हरे कृष्ण, मेरी एक लेक्चर चल रहा है। ओके। इस श्लोक का मीनिंग इसको पढ़ते हैं हम। That literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. It is a qualification of the great thinkers to pick up the best even from the worst. It is said that the intelligent man should pick up nectar from a stalk of poison, should accept gold even from a filthy place, should accept a good and qualified wife even from an obscure family, and should accept a good lesson even from a man or from a teacher who comes from the untouchables. These are some of the ethical instructions for everyone in every place without exception. But a saint is far above the level of an ordinary man. He is always absorbed in glorifying the Supreme Lord, because by broadcasting the holy name and fame of the Lord, the polluted atmosphere of the world will change, and as a result of propagating the transcendental literatures like Srimad Bhagavatam, people will become sane in their transactions. While preparing this commentation on this particular stanza of Srimad Bhagavatam, we have a crisis before us. Our neighboring friend China has attacked the border of India with a militaristic spirit. We have practically no business in the political field, yet we see that previously there were both China and India, and they were both lived peacefully for centuries without ill feeling. The reason is that they lived those days in an atmosphere of God consciousness. And every country over the surface of the world has God-fearing, pure-hearted, and simple, and there was no question of political diplomacy. There is no cause or quarrel between the two countries, China and India, over land which is not very suitable for habitation, and certainly there is no cause for fighting on this issue. But due to the age of quarrel, Kali, which we have discussed, there is always a chance of quarrel on slight provocation. This is due not to the issue in question, but to the polluted atmosphere of this age. Systematically, there is propaganda by a section of people to stop glorification of the name and fame of the Supreme Lord. Therefore, there is a great need for disseminating the message of Srimad Bhagavatam all over the world. It is the duty of every responsible Indian to broadcast the transcendental message of Srimad Bhagavatam throughout the world, to do all the supermost good, as well as to bring about the desired peace in the world. Because India has failed in her duty by neglecting this responsible work, there is so much quarrel and trouble all over the world. We are confident that if the transcendental message of Srimad Bhagavatam is received only by the leading men of the world, certainly there will be a change of heart, and naturally the people in general will follow them. The mass of people in general are tools in the hands of modern politicians and leaders of the people. If there is a change of heart of the leaders only, certainly there will be a radical change in the atmosphere of the world. We know that our honest attempt to present this literature conveying transcendental messages for reviving the God consciousness of the people in general and re-spiritualizing the world atmosphere is fraught with many difficulties. Our presenting this matter
Inadequate language, especially a foreign language, will certainly fail, and there will be so many literary discrepancies despite our honest attempt to present it in the proper way. But we are sure that with all our faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration, and the leaders of the society will still accept this due to its being an honest attempt to glorify the Almighty God. When there is a fire in the house, the inmates of the house go out to get help from the neighbors, who may be foreigners, and yet, without knowing the language, the victims of the fire express themselves, and the neighbors understand the need. Even though not expressed in the same language, the same spirit of cooperation is needed to broadcast this transcendental message of the Supreme Srimad Bhagavatam throughout the polluted atmosphere of the world. After all, it is a technical science of spiritual values, and thus we are concerned with the techniques and not with the language. If the techniques of this great literature are understood by the people of this world, there will be success. When there are too many materialistic activities by the people in general all over the world, there is no wonder that a person or a nation attacks another person or nation on slight provocation. That is the rule of this age of Kali or quarrel. The atmosphere is already polluted with corruption of all description, and everyone knows it well. There are so many unwanted literatures full of materialistic ideas of sense gratification. In many countries, there are bodies appointed by the state to detect and censor obscene literature. This means that neither the government nor the responsible leaders of the public want such literature. Yet it is in the marketplace because the people want it for sense gratification. The people in general want to read. That is a natural instinct. But because their minds are polluted, they want such literatures. Under the circumstances, transcendental literatures like Srimad Bhagavatam will not only diminish the activities of the corrupt mind of the people in general, but also it will supply food for their hankering after reading some interesting literature. In the beginning, they may not like it because one suffering from jaundice is reluctant to take sugar candy, but we should know that sugar candy is the only remedy for jaundice. Similarly, let there be systematic propaganda for popularizing reading of Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which will act like sugar candy for the jaundice-like condition of the sense gratification. When men have a taste for this literature, the other literatures which are catering poison to society will then automatically cease. We are sure, therefore, that everyone in human society will welcome Srimad Bhagavatam, even though it is now presented with so many faults, for it is recommended by Sri Narada, who has very kindly appeared in this chapter. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vande Aham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ भी कहने से पहले सब भक्तों की कृपा याचना करते हैं। सब भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रभु जी ने यह आदेश किया है तो उनकी कृपा से हम कुछ बोल पाए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद को की जो पुस्तकें हैं इनको पढ़ना क्यों आवश्यक है और केवल इन्हीं को क्यों पढ़ना चाहिए और इन्हें पढ़ने का तरीका क्या है। क्योंकि ऐसे नहीं तो हमारे जीवन में हम पढ़ते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएंगे, लेकिन हम कुछ सारा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हमको लगेगा कि इतने सारे लेक्चर्स तो सुन डाले प्रभु जी और इतना सब कुछ कर डाला, पर पता नहीं मतलब कितना क्या याद रहता है, नहीं रहता है। तो इसलिए आज सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि सब इस्कॉन संस्था में ये श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, अदरवाइज भी आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, जैसे कि आध्यात्मिक पुस्तकें और भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो क्या हम उन पुस्तकों को क्यों नहीं पढ़ सकते, केवल श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें ही क्यों पढ़नी चाहिए। उसके बाद इस डिस्कशन के दूसरे परार्ध में हम ये पढ़ेंगे और इस बात पे चर्चा करेंगे कि इन पुस्तकों को आखिर पढ़ा कैसे जाए। नहीं तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, इनको सबको इकट्ठा करके रख पाना एक बहुत ही बड़ा दुविधा है। तो ये कैसे किया जाए, क्योंकि अब अभी तो नए नए हम भक्त हैं तो हमारे लिए ठीक है, अभी 10 साल 15 साल ही हुए हैं भक्ति में। ऐसे ही एक दिन 40 साल हो जाएंगे भक्ति में, तब तक कितने सारे प्रवचन सुन चुके होंगे, कितनी सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी। उसके बाद फिर हम इन सब को इकट्ठा कर पाना, स्मरण कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आज इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि केवल श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें ही क्यों। इससे पहले हम एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक सियार रहता था। वो सियार एक दिन गलती से ऐसा हुआ कि शहर की तरफ तरफ चला गया और शहर की तरफ सारे जगह पे घूम रहा था, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था जंगल का। तो बेचारा इधर उधर घूमते घूमते एक नील की टोकरी में गिर गया। नील की टोकरी जो होती है ना, नील 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 जो रखते हैं, उस नील की टोकरी में गिर गया। नील की टोकरी में गिर गया तो नीला नीला हो गया। अब जब पहुंचा जंगल में, फिर से किसी तरह खोज खोज के पहुंचा तो कोई पहचान ही नहीं रहा कि ये सियार है कि नहीं, क्या है। तो सारे लोग सोच रहे हैं कि तो कोई नया जानवर आ गया। अब सब लोग उससे डर रहे हैं, भाई ये कौन सा स्पीसीज आ गया, कोई ऐसा तो कभी देखा नहीं। सब लोग डर रहे थे। और बस फिर क्या हुआ, एकाएक से आनन फानन में उस सियार को, नीले सियार को जंगल का राजा घोषित कर दिया गया। सियार ने भी कहा, हाँ हाँ, सब लोग सब मेरे नीचे, हम जैसे कहेंगे वैसे करना है सबको। सियार भी बहुत बस फिर थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद
आप लोग ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? जो लोग वीडियो ऑफ किए हैं पता नहीं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। तो थोड़ी देर बाद रात होने लगी तो सारे सियार जो है हुआ हुआ करने लगे, है ना। नहीं, सारे सियार जब हुआ हुआ करने लगे तो वो भी, उसको भी सूझा कि अरे ये तो अपना टाइम आ गया। वो भी अब भले कलर चेंज हो गया था लेकिन उसने भी शुरू किया हुआ हुआ हुआ। बस सबको पकड़ में आ गया कि ओ ये तो सियार है? सबको पकड़ में आ गया। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एक साधु को कैसे पता लगाया जाता है कि कौन साधु है। साधु जब बोलता है तो उससे ये पता चलता है कि वो क्या है। साधु के शब्दों से ये पता चलता है कि वो क्या है। ऐसे उसके वेश से नहीं पता चलता। हो सकता है कि कोई किसी तरह का वेश हो, कोई कपड़े ही नहीं पहनते हो, इससे नहीं पता चलता। वो जब बोलता है तो उससे पता चलता है। इसी तरह से एक साधु की दूसरी और तरीके से भी परीक्षा होती है। एक बार राजा अकबर के सभा में दो व्यक्ति झगड़ा करते हुए, दो व्यक्ति आ गए, है ना। नहीं, और सारी सभा में ये प्रश्न उठा कि ये जो व्यक्ति है ये पता किया जाए कि इसकी जो है मदर टंग क्या है। मदर टंग कैसे पता करेंगे, है ना। तो बीरबल ने यह सलाह दी कि महाराज इसकी पिटाई कीजिए, ये जिस भाषा में चिल्लाएगा वही इसकी वास्तविक भाषा होगी। तो फिर उसकी पिटाई गई तो वो गुजराती में चिल्लाने लगा। सबको पता चल गया कि ओ ये गुज्जू भाई हैं, है ना। सीखने वाली बात क्या है? दूसरी परिभाषा है साधु की। साधु को कैसे पता किया जाता है? कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन में वो क्या करता है, इससे पता चलता है कि कौन कितना साधु। इसीलिए एक साधु के जो शब्द हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए इस्कॉन संस्था में, इस्कॉन पूरी संस्था का आधार जो है ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं। आप सबको जान करके ये हैरानी होगी कि ये श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, श्रील प्रभुपाद ये कहा करते थे कि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी हैं, कृष्ण ने स्वयं लिखी हैं। एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद का जब ये स्टेटमेंट आया कि मैंने नहीं लिखी है, भगवान ने लिखी, तो तमाल कृष्ण महाराज ने सब भक्तों को बताना शुरू किया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान ने प्रेरणा दी श्रील प्रभुपाद को और फिर श्रील प्रभुपाद ने लिखा। बाद में श्रील प्रभुपाद ने उनकी आंखों में आंखें डाल करके ऐसे पास में गए और उसके बाद बोलते हैं, These books have been written by Krishna himself। मतलब ये जो पुस्तकें हैं इसको कृष्ण ने स्वयं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। श्रील प्रभुपाद खुद भी अपनी पुस्तकों को पढ़ा करते थे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, श्रील प्रभुपाद खुद ही अपनी बुक्स को पढ़ा करते थे। कोई भी राइटर इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो कि अपनी ही बुक्स को पढ़ता हो। और श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में एक ही पॉइंट को कितनी बार रिपीट करते हैं, इससे यह पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद ने कभी फेमस होने के लिए नहीं लिखा, नहीं तो नई नई कहानियां लिखते। इसलिए श्रील प्रभुपाद की जो तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि आप खुश होना चाहते हो, खुशी आपको चाहिए, तो मेरी पुस्तकों का वितरण करो। if you distribute these books you will become happy। और अगर आप if you want to
if you distribute my books, you will stay happy, and if you read these books, you will stay. मतलब अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक भजन करना चाहता है, भक्तों के संग में बने रहना चाहता है, और बात बात में उसके जो श्रद्धा है वो कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी उसको लगता है कि थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग में चले जाएं क्या, नहीं इधर भी ठीक है, इस्कॉन में रहें कि ना रहें, वहां भी तो गीता ही पढ़ाते थे, मैं वो संस्था में न चला जाऊं। अगर किसी को ये बहुत ज्यादा डाइवर्जन इधर उधर का होता है, तो ऐसे भक्तों को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें अवश्य ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुस्तकों को पढ़ने से आपकी निष्ठा बढ़ेगी। ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हमारे जो संस्था है, इस्कॉन संस्था, इसका आधार है। श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं, यही इस्कॉन संस्था का आधार है। बुक्स आर द बेसिस। मैंने कई बार आपको ये कहानी सुनाई थी कि एक समय, आप लोग ध्यान से सुनना है ना, एक समय श्री संप्रदाय के जो इस समय के आचार्य हैं, चिन्ना जीआर स्वामी, इनके सपने में भगवान रंगनाथ स्वामी, भगवान रंगनाथ आपने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है भगवान रंगनाथ को? देखा है आपने? कोई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान रंगनाथ के दर्शन किए साउथ इंडिया में? कोई भी नहीं। वो जो लेटे हुए से भगवान है, लेटे से भगवान है ना, ऐसे सोए हुए से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, वो वाले जो भगवान हैं, वो चिन्ना जीआर स्वामी के सपने में आकर के कहते हैं कि जाओ इस्कॉन संस्था में जाकर के आप चैतन्य चरितामृत खरीदो और उसको पढ़ो। मतलब कि सोचने वाली बात है कि आज के समय के वैष्णव संप्रदाय के किसी आचार्य के सपने में आकर के भगवान खुद ही कह रहे हैं कि जाओ इस्कॉन संस्था में जाओ और वहां जाकर के पढ़ाई करो, चैतन्य चरितामृत को पढ़ो, वहां से खरीद के लेके आओ। इसका मतलब यह है कि ये जो संस्था है, ये कितनी प्रामाणिक संस्था है, इस्कॉन संस्था। स्वयं भगवान ये कह रहे हैं कि इसकी किताबें पढ़नी चाहिए। तो कितना ये महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना। श्रील प्रभुपाद ये कहा करते थे कि दीज बुक्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज। डिवोशनल एक्सटेसीज मतलब मैंने अपने परम भाव में इन पुस्तकों को लिखा है। तो एक एक लाइन और एक एक शब्द जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तो इसमें हीरे मोती निकलेंगे। हम तो जल्दी जल्दी से पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर सच में इसको आपको रियलाइज करना है, तो एवरी लाइन इज ए फॉर्मूला। एक बार हरिशौरी प्रभु, श्रील प्रभुपाद, नेक्टर ऑफ डिवोशन नई नई प्रिंट होके आई थी। नेक्टर ऑफ डिवोशन जो बुक है, वो प्रिंट होके आई थी। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे देखा, ऐसे फ्लैप किया उसको, और फिर बोलते हैं, दिस बुक, this one book, if somebody reads, will surely go back to God. तो हरीशौरी प्रभु ने कहा कि पता नहीं प्रभुपाद, कोई पढ़े ना पढ़े, पूरी पूरी किताब कौन पढ़ पाता है, एक दो तो छूट ही जाती है। तो प्रभुपाद ने ऐसे खोला और उसके बाद फिर कहा, ओके, one chapter, if somebody reads one chapter and follows it, he will go back to Godhead. तो फिर श्रील प्रभुपाद ने, हरीशौरी प्रभु ने कहा कि पता नहीं प्रभुपाद कोई एक चैप्टर भी पढ़े ना पढ़े कोई हो सकता है ना पढ़ पाए। तो प्रभुपाद ने कहा कि ओके, वन पैराग्राफ, इफ somebody reads even one paragraph and follows it, he will go back to Godhead. तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ये भी पता नहीं फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इवन वन लाइन
Even if somebody reads one line and follows it, he will go back to God. श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, एक लाइन भी अगर कोई पढ़ के अपने जीवन में उतार लेता है तो उतने भर से भगवत धाम जा सकता है। इतनी शक्ति श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम इस पुस्तकों में है। एक बार श्रील प्रभुपाद जन्माष्टमी के दिन, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि पहली वाली जन्माष्टमी थी, सबसे पहले दिन जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी के दिन श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, आज हम जन्माष्टमी मनाएंगे। तो जन्माष्टमी मनाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये कृष्णा बुक जो थी इसको हम पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू किए, श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक पढ़ना शुरू किया। 5 घंटे तक श्रील प्रभुपाद लगातार कृष्णा बुक पढ़ते रह गए, बोल बोल के, और कई चैप्टर श्रील प्रभुपाद ने पढ़ डाले। लेकिन 4-5 चैप्टर के बाद सारे भक्त सो गए, क्योंकि भक्तों को तो भूख लग रही थी, रात दिन भर तो फास्टिंग किया था, और सारे भक्त सो गए, केवल श्रील प्रभुपाद जाग रहे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने रात भर कृष्णा बुक पढ़ी, और फिर सुबह श्रील प्रभुपाद ने रात भर अपनी ही पुस्तक कृष्णा बुक को श्रील प्रभुपाद ने पढ़ा। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि अगर ये पुस्तक को हम पढ़ते रहेंगे भक्त इस्कॉन के, तो फिर हमारे इन भक्तों को कोई भी डिविएट नहीं कर सकता। रात रात भर जाग करके श्रील प्रभुपाद ने इन पुस्तकों को लिखा। श्रील प्रभुपाद 10 बजे सो जाते थे, 1 बजे उठ जाते थे, कई बार तो 11 बजे सोते थे, उठने का टाइम फिक्स था, 1 बजे ही उठते थे। 1 बजे उठ करके 1 बजे से 4 बजे तक रोज श्रील प्रभुपाद इन पुस्तकों को लिखते थे। रात में इतनी तपस्या करके श्रील प्रभुपाद ने इन पुस्तकों को लिखा है। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इन पुस्तकों को पढ़ना। श्रील प्रभुपाद ये कहते थे कि दीज बुक्स विल बिकम द लॉ बुक्स फॉर द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। अगले 10,000 साल तक ये पुस्तकें, 10,000 साल में यही पुस्तकें लॉ बुक्स बन जाएंगी। मतलब आईपीसी जैसे हम फॉलो करते हैं, या फिर यहाँ लॉ बुक्स फॉलो करते हैं, वैसे इस्कॉन की पुस्तक से पढ़ के सारा देश चलाया जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि मैं शरीर नहीं छोड़ रहा हूं। जब जाने लगे श्रील प्रभुपाद, तो उन्होंने कहा कि मैं शरीर नहीं छोड़ रहा हूं, मैं इन पुस्तकों में हूं। जो भी कोई इन पुस्तकों को पढ़ता है और इनका पालन करता है, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं। अब कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी, हमारी तो संस्था में, चैतन्य महाप्रभु की संस्था है, इसमें तो चैंटिंग ही प्रोसेस है, तो फिर बुक रीडिंग का क्या, पुस्तकें क्यों पढ़ना? क्योंकि चैंटिंग करने में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, कभी ये मन करेगा, कभी वो मन करेगा। तो आपके विवेक को शक्ति देने के लिए द पावर ऑफ टू डिस्क्रिमिनेट, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट दैट राइट फ्रॉम रॉन्ग विल बी गिवन बाय दीज बुक्स। इसलिए इन पुस्तकों को पढ़ने से किसी के अंदर विवेक क्षमता, सही और गलत का फैसला करने की क्षमता जो है, पुस्तकों को पढ़ने से, इन बुक्स को पढ़ने से आती है। आपको सुन करके हैरानी होगी, तिरुपति मंदिर में ये जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, इसको अल्टर में रखा जाता है। अल्टर में रख करके इनकी पूजा की जाती है, जैसे कृष्ण हो वैसे ही पूजा। तिरुपति मंदिर में साल भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से उस मंदिर में लगभग 200 ब्रह्मचारी हैं। ऐसे ही बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिसने पढ़ी वो आ गया, मंदिर ज्वाइन कर लिया। ऐसे करके 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 200
ब्रह्मचारी इस समय तिरुपति मंदिर में है। ये पुस्तकों को पढ़ के तो अल्टर के अंदर इन्होंने रखी हुई है ये प्रभुपाद की बुक्स। देवामृत महाराज एक आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के, वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि अगर ये श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं इसको कोई छू भी लेता है, अगर एक बार अगर छू लेता है तो उसको मनुष्य जीवन, अगला जीवन कभी उसको नीचे की योनि नहीं मिलेगी, कुत्ता, शेर, भालू, गाय वगैरह कोई योनि नहीं मिलेगी, उसको मनुष्य जीवन अवश्य मिलेगा अगर वो केवल इस पुस्तक को एक बार छू ले, बस केवल टच करने से मनुष्य जीवन अवश्य मिलेगा। और एक बार तो श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा ये तो श्रील प्रभुपाद ने देवामृत महाराज से कहा, और देवामृत महाराज ये कहते हैं कि मैंने तो अपने स्टॉल पे आने वाले कई लोगों को, कई जानवरों को इंसान बनते देखा। जो बुक स्टॉल में आते हैं उन ऐसे बहुत सारे लोग जानवर के जैसे होते हैं, उनको हमने इंसान बनते देखा है। एक भक्त थे, अभी भी हैं, गोवर्धन इको विलेज चौपाटी मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। आईआईटी कॉलेज में इतने बड़े बड़े बाल थे, बुलेट लेके चलते थे और ऐसे ऐसे घूमते थे, बुलेट लेके चलते थे, गुंडे थे अपने कॉलेज के लेकिन ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के इनका हृदय कितना परिवर्तन हो गया, शुद्ध भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के आज इस समय इस्कॉन के एक मंदिर के टेंपल प्रेसिडेंट है, सोचिए आप। तो इतना श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने का इतना बल है। कई बार भक्त लोग भी ये सोचते हैं कि हमको प्रभुपाद से नहीं मिल पाए, हम अगर हम मिले होते प्रभुपाद से तो कितना अच्छा रहता। लेकिन आपके घर में तो श्रील प्रभुपाद 24 घंटे हैं, इतना तो कोई साधु नहीं रह सकते। कौन साधु आपको, अगर मान लो 1 बजे रात में आप फोन करोगे किसी को कि प्रभु जी हमें आपसे बात करनी, तो बात करेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद को अगर आप 1 बजे रात में भी पुस्तकें उठा लोगे और बोलोगे प्रभुपाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो तुरंत श्रील प्रभुपाद आपसे बात करते हैं 1 बजे रात में भी। हमारे जो आचार्य लोग हैं वो इतनी मेहनत से इन पुस्तकों को पढ़ा करते थे। एक संकर्षण दास अधिकारी, कुछ ऐसी घटना हुई उनके मंदिर में, टेंपल कमांडर की सेवा थी उनकी, और उनको डीटी किचन में कुक बना दिया गया, एकाएक से कुक बना दिया गया। तो वो एक हाथ से खीर चलाते थे और दूसरे हाथ से, 2 घंटे लगते हैं। इस्कॉन की खीर आप में से किसने खाई है? जो इस्कॉन की खीर होती है वो बहुत स्पेशल होती है, अगर आपको कभी भाग्य में होगा तो जरूर खाना। इस्कॉन मंदिर की जो सुबह जो भगवान को भोग लगी हुई जो खीर होती है ना, सुबह सुबह वाली, वो सुबह मिलती है 5:30 बजे। वो जो खीर होती है उससे बढ़िया दुनिया में कोई, सृष्टि में कोई चीज ही नहीं है तो उसको, तो वो जो खीर है उसको बनाने के लिए संकर्षण दास अधिकारी महाराज ऐसे ऐसे चलाते थे, एक हाथ से खीर चलाते थे और दूसरे हाथ से श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते थे। ऐसे करके करके उन्होंने सारी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी। एक हाथ में खीर चलाते, एक हाथ में बुक लेते श्रील प्रभुपाद की। इतनी आवश्यक है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना। मैंने एक बार खुद पर्सनली मैंने गोपाल कृष्ण महाराज के पास में गया, मतलब मैंने महाराज से कहा कि महाराज मैंने पढ़ लिया है प्रभुपाद की बुक्स, जो हैं जो भी हैं सारी मैंने पढ़ ली हैं, तो अभी मैं क्या करूं, मैं कुछ और बुक्स पढ़ूं क्या, थोड़ी एक्स्ट्रा थोड़ा। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, महाराज ने कहा कि आपने कभी देखा है इस दुनिया में इतना परिवर्तन कोई और पुस्तक लेके आ पाई है? कोई भी बुक इस दुनिया में इतना परिवर्तन नहीं ला पाई है
जितना कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं। हिप्पी लोगों को हैप्पीज में बदल दिया है, और जो शराब पीते थे, नशे करते थे, उनको सन्यास दे दिया है इन पुस्तकों ने। इतना परिवर्तन। ऐसे तो गीता प्रेस की बहुत सारी पुस्तकें थी, है ना। गीता प्रेस की भी किताबें सब लोग, सबके घर में हैं, लेकिन किसी पुस्तक से इतना दिल परिवर्तन नहीं हुआ कि प्याज लहसुन तक छोड़ सके। सोचो आप, प्याज लहसुन भी लोग नहीं छोड़ पाते थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो कि गीता प्रेस के मुख्य व्यक्ति रहे, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि मैं किसी, उनको भाई जी बोलते थे, तो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि मैं कभी किसी जिंदा व्यक्ति का फोटो अपनी पत्रिका में नहीं छापूंगा। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद आए तो विदेश से इंडिया आए, तो श्रील प्रभुपाद की फोटो अपने सारे भक्तों के साथ हनुमान प्रसाद पोद्दार ने छापी थी अपनी पत्रिका में। हनुमान प्रसाद पोद्दार ये जानते थे कि ये शुद्ध भक्त हैं। जब श्रील प्रभुपाद ने पहली प्रति अपनी दिखाई, लिखी हुई, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने 4,000 रुपए दिए। उस समय 4,000 रुपए हनुमान प्रसाद पोद्दार ने दिए अपने पास से श्रील प्रभुपाद को, इन पुस्तकों को, भागवत को प्रिंट कराने के लिए। इसका मतलब ये सोचने पर, हम कभी रोड पे जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं हमसे कि आपके पास गीता प्रेस की नहीं है? आपके पास गीता प्रेस के जो प्रणेता हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो ये कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो। ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें कितनी आवश्यक है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना। एक आह्लादिनी माता जी हैं, मतलब वो, उनको समय नहीं मिलता था, इतनी सेवा रहती थी उनके मंदिर में, मंदिर के पास में ही रहती थी। पुराने समय में ऐसा होता था कि माता जी, प्रभु जी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी सब लोग मंदिर में ही रहते थे। इस्कॉन में सब लोग मंदिर में ही रहते थे। जो बाहर रहता था, मतलब उसको समझा जाता था कि वो बाहर का व्यक्ति है। सब लोग मंदिर में ही रहते थे। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि एक ही कपड़ा खरीदा जाता था, सब वही पहनते थे, माता जी, प्रभु जी, सब लोग एक ही कपड़ा था। ऐसा लाल कलर का एक थान खरीद लिया जाता था, बहुत बड़ा सा। उसी में से साड़ी भी बनती थी, उसी में से धोती भी बनती थी, उसी में से सब कुछ बनता था। और सारा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता था, एक ही जगह, उसी में से निकाल के उसी को धो दिया जाता था, और उसी में से सब लोग पहन लिया। किसी का फिक्स नहीं था धोती कि ये मेरी, नाम किसी पे नहीं लिखा था। एक बंच था, उसी में से निकाल के सब पहनते थे। उस समय जब नया नया था हमारी संस्था, जब इस्कॉन। तो आह्लादिनी माता जी जो थी, उनको इतनी सेवा थी कि बेचारी को कोई टाइम नहीं मिलता था। तो उन्होंने क्या किया, बर्तन धोते धोते किताबें पढ़ना शुरू किया। बर्तन धोने की जो सेवा थी, बर्तन धोती थी और उस समय किताबें, मतलब इधर बर्तन धो रही हैं और ऐसे किताब पढ़ रही हैं। सोचिए, ऐसे करके आह्लादिनी माता जी, प्रभुपाद की शिष्या हैं, वो पुस्तकों को पढ़ा करती थी। एक बार आह्लादिनी माता जी के पास ऐसा हुआ कि पैसे ही नहीं थे किताब खरीदने के, तो उन्होंने लेटर लिखा बीबीटी को, मतलब जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें प्रिंट करने वाले लोग हैं, उनको लिखा कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे मंदिर में पैसा बहुत कम है, तो आप लोग अगर हमें वैष्णव गीत वाली जो बुक है, वो कोई डिफेक्टिव कॉपी अगर आपके पास हो, जो इधर उधर से फट गई हो, तो वो अगर हमें भेज दे, तो मैं उसको थोड़े वैष्णव भजन याद कर लूं, गा लूं और पढ़ लूं। तो आह्लादिनी माता जी की इतनी सिंसियरिटी देख करके बीबीटी ने उनको नई कॉपी गिफ्ट की, पैसे नहीं लिए, नई फ्रेश नई कॉपी उनको गिफ्ट की, उनकी सिंसियरिटी को देख करके। गौर गोविंद महाराज भी, इसके ऊपर एक बुक लिखी है गौर गोविंद महाराज ने,
कि श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में सब कुछ है, A to Z इन श्रील प्रभुपाद बुक्स, ऐसे करके एक बुक लिखी है गौर गोविंद महाराज ने। ये श्रील प्रभुपाद की बुक में सब कुछ दिया हुआ है, कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं। कई बार लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी कोई और बुक पढ़ ले क्या, प्रभुपाद की ही हमेशा पढ़नी है, यही बुक पढ़नी है क्या, इसमें बार बार वही बता रहे हैं, आत्मा, बॉडी सोल, बॉडी सोल। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो थे, वो 1 घंटा अगर दुनिया बाहर की कोई पुस्तक पढ़ते थे तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए 18 घंटे श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते थे। मतलब 1:18 का रेशियो था। कोई और अगर पुस्तक पढ़ते थे तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक 18 घंटे पढ़ते थे उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। मैं तो सच बता रहा हूं आपको, अगर आप पहली बार पढ़ेंगे ना, अभी तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद सुबह प्रभु जी पढ़ाते हैं, शाम को कुछ होता है, लेकिन पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो पहली बार पढ़ने पर यह रहता है कि आपको जो है इंफॉर्मेशन पता चलेगी। अच्छा, अक्रूर जी थे, ओके ओके ठीक है, कंस मामा थे, अच्छा 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 ठीक है। फर्स्ट टाइम इज इंफॉर्मेशन, सेकेंड टाइम इज डिस्कवरी। जब दूसरी बार आप इन्हीं पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वो डिस्कवरी हो, आपको आश्चर्यचकित होगा, आपको लगेगा अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है, हमने तो ये पढ़ा नहीं था पहली बार में। और तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तब आपको साक्षात्कार होगा, मतलब आपको रियलाइज होगा कि श्रील प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आपके जीवन में आपको दिखेगा वो चीज होता हुआ। और आप देखोगे कि ये प्रभुपाद की पुस्तक और ये संस्था ही ऐसी है, जो भी इस्कॉन संस्था में आता है उसके अंदर पता नहीं कहां से ये आ जाता है कि नहीं मुझे भी प्रचार करना है। इन पुस्तकों में प्रचार जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में। तो एक व्यक्ति के अंदर एकदम से उत्कंठा आ जाती है, नहीं मुझे भी प्रचार करना है। कोई और पुस्तक पढ़ो, मैंने भी इतनी पुस्तकें पढ़ी, मुझे हमें रामचरितमानस याद कराया जाता था, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन मैंने देखा कि उनसे कभी ये इच्छा नहीं होती थी कि मैं भी जाऊं, मैं भी प्रचार करूं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की ऐसी ये पुस्तकें रहती हैं, सबको मन करता है प्रचार करने का, है कि नहीं। तो हमारा एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है, कोई लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी 1 घंटा पढ़ें या 2 घंटा पढ़ें, कितना पढ़ें। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, आपको लगेगा। एक्चुअली आपने कभी अगर रेनॉल्ड्स की पेन देखी होगी, तो मान लीजिए कि ये आपके रेनॉल्ड्स की पेन है ना, आपने देखा है इसके ऊपर कभी कभी एक ढक्कन होता है ना, मान लो ये आपका ढक्कन है रेनॉल्ड्स की पेन का, इसमें एक कभी कभी वो निकला होता है, यहाँ पर एक स्ट्रैप निकला होता है। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, ये जो स्ट्रैप होता है, ये पेन लगाने वाला, इसको बच्चे लोग घुमा देते हैं तो ये पेन लगता नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन बताएगा। रेनॉल्ड्स की पेन है, अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन, आपको कैसे मैं बताऊं। देखो ये पेन है ना, देख रहे हैं आप, पेन पेन है, इसका ये जो निब है, ये वो क्लिप है ना, ये मुड़ गया है, तो इसको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा। उल्टे साइड में ज्यादा मोड़ना पड़ेगा आप समझ रहे हैं, जिस साइड में मोड़ गया है उसके उल्टे साइड में ज्यादा मोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से हमारी चेतना हो गई है खराब, तो उल्टे साइड में ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के नॉर्मल आएगी, है कि नहीं, नहीं तो नॉर्मल नहीं आएगी। हम कहेंगे कि प्रभु जी बस बैलेंस करके रखेंगे, थोड़ा थोड़ा राम जी, थोड़ा थोड़ा काम जी, थोड़ा थोड़ा राम जी, थोड़ा थोड़ा काम जी,
इससे नहीं होगा। राम जी को घुसा देना पड़ेगा काम जी में, तब जाकर के राम जी काम जी का बैलेंस आ पाएगा। नहीं तो थोड़ा थोड़ा राम जी थोड़ा थोड़ा काम जी तो नए लोगों के लिए ठीक है, लेकिन हम ऐसे रेनॉल्ड्स पेन के ढक्कन के जैसे हैं। जैसे देखो ना, उसको इस साइड से ऐसा वो मुड़ गया है, उसको सीधा करने के लिए थोड़ा ज्यादा मोड़ना पड़ेगा इधर साइड। तो ज्यादा मोड़ेंगे जब, तब वो बीच में एकदम लाइन पे आ जाता है कि नहीं। वैसे ही हमें भी भक्ति में अभी हमारा क्या है, कुछ है नहीं, भक्ति कुछ है ही नहीं, खाली छोड़ दो तो टीवी देखने लगते। हमारी चाची लोग ऐसे हैं, इतना सीरियल कॉन्शियस हो जाती थी, मैंने देखा है कभी कभी, इतना सीरियल कॉन्शियस हो जाते थे कि आटा लेकर के टीवी के सामने बैठ जाते थे। अरे बेचारी का 17वां शादी किससे होगी। इतनी इतनी कॉन्शियस होते थे। 17वीं बार उसकी शादी हो रही है, अरे 16 बार जब हो गई तो किसी न किसी से हो ही जाएगी। लेकिन वो इतना कॉन्शियस, मतलब हम इतना सीरियल्स में, नेटफ्लिक्स में, इन सब चीजों में इतना घुस चुके हैं कि हमारा पेन जो है वो एकदम टेढ़ा हो चुका है। अब इसको सीधा करने का तरीका क्या है, इसको उल्टे साइड बहुत ज्यादा घुमाना पड़ेगा, तब जाकर के नॉर्मल आएगा ये। इसीलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ना चाहिए, 4-5 घंटे माला खूब सारी करनी चाहिए, तब जाके नॉर्मल आएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर हम ये श्रील प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ेंगे, सोचो, तो एक और घाटा है। नवीन नीरद प्रभु कहते हैं कि इस्कॉन में जितने भी लोग हैं, 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़ी हैं। पूरे इस्कॉन की बात कर रहे हैं, 10% से भी कम लोग हैं। इसलिए ये जो पुस्तकें हैं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जब हम लेक्चर देंगे, मान लो हम लेक्चर्स देते हैं, तो हम कुछ भी बोलेंगे या फिर किसी से भी बात करेंगे तो हम प्रजल्प करेंगे, प्रजल्प ही करेंगे, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ रहे। तो वी विल जस्ट ब्लैबर इफ वी आर नॉट रीडिंग द श्रील प्रभुपाद बुक्स प्रॉपरली। इसीलिए अगर आप मैनेज नहीं कर सकते इस सोसाइटी को, इस्कॉन संस्था में अगर आप मैनेज करके चलना चाहते हैं तो ठीक है, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए। अगर आप श्रील प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी इस्कॉन में, और फिर हम डैमेज करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, डैमेज करेंगे। तो इसलिए ये पुस्तकों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति ने, एक बार श्रील प्रभुपाद अपने, एक भक्त थे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद कार से आए और उन भक्त को बोले कि लाओ बुक दिखाओ। तो उन्होंने दे दी बुक। तो प्रभुपाद ने कहा कि सो व्हाट इज रिटन इन दिस बुक। उसने कहा कि आई डोंट नो प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा ओह, समटाइम्स यू शुड रीड ऑल्सो दिस बुक्स, नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूट, केवल बांटना ही नहीं है, खुद भी पढ़ना है इन पुस्तकों को, है ना। नहीं, अब एक और चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल सॉफ्ट कॉपी वाला सिस्टम चल गया है, सब लोग सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हैं। तो ये चल गया है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, किताब से पढ़ने का ना, किताब को टच करके किताब से पढ़ने का जो अलग ही, उसमें चेतना में जितना परिवर्तन आता है, उतना आपको ये ऑनलाइन वाले से और ई बुक वाले से उतना नहीं आएगा। किताब से पढ़ने का एक अलग ही आनंद है ना। नहीं, तो कुछ लोग ये कहते हैं प्रभु जी मुझे पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं, मैं सुन सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता। तो हमको क्या करना चाहिए, किसी जो खूब पढ़ने वाला व्यक्ति हो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए और उसके साथ बैठ करके पढ़ना चाहिए, है ना। नहीं, श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम लोग कोई ऐसा कोर्स हो जिसमें एग्जाम हो, मतलब प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं इसके ऊपर एग्जाम्स हो, हर दिन कुछ टेस्ट हो, एग्जाम हो, जिसमें उनका पता चले कि लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं सच में, है ना। नहीं, एग्जाम होना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहा करते थे।
कि देयर शुड बी एन एग्जामिनेशन आफ्टर रीडिंग द बुक्स। तो अगर हम ये पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत सेंटिमेंटल हो जाएंगे। मतलब सेंटिमेंटल का मतलब वो बस जो भावनाओं को अच्छा लगेगा वही करेंगे, है ना। इसलिए हर दिन पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, एक दिन पढ़े ही नहीं, ऐसे नहीं। हर दिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, है ना। नहीं तो इसका तरीका क्या है अब पुस्तकों को पढ़ने का? एक तो बहुत अच्छा तरीका है कि ऐसे भक्तों के साथ हर दिन जैसे शेड्यूल बन गया है प्रभु जी के साथ सबको पढ़ने का, ये बहुत अच्छा तरीका है कि श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ा जाए। जो भक्त ऑफिस जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने पास ये बुक को, अगर ये मान लो भारी लगती है आपको, अगर भारी नहीं लगती तो अपने बैग में एक बुक आप लेके जाइए और जब भी आपको टाइम मिले बस निकाल करके पढ़ने लगी। एक ना एक बुक आपके पास हमेशा ही होनी चाहिए आपके बैग में। बुक ले करके घूमना एक बढ़िया तरीका है श्रील प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ने का। आप देखोगे कि थोड़े थोड़े टिट्स बिट्स में पढ़ के आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ डाली श्रील प्रभुपाद की, है ना। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए, इसके विषय में एक चार्ट है, उसको मैं कभी आगे अगर अवसर मिला तो इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे इसको अपने जीवन में अप्लाई करना है या फिर चीजों को कैसे एसिमुलेट करना है कि जिस टॉपिक पे मैं ये पढूं फिर उसको मैं उस समय कोट कर सकूं या मैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकूं। तो इसका एक चार्ट है, उसको कभी हम आगे इसको चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज हमने ये चर्चा किया कि श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं उसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में आपकी भूख, अगर आप आध्यात्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं तो आपकी भूख बढ़ती जाएगी। मतलब जितना भोजन, आध्यात्मिक भोजन आप कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा कम लगेगा, आपको लगेगा थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता तो ठीक रहता। इसलिए फिर वहां पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें आपको बहुत काम में आएंगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद की बुक्स को खूब अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने श्रील प्रभुपाद की किताबें ही क्यों पढ़नी चाहिए और इस्कॉन संस्था में ही क्यों रह करके यहाँ पर ही क्यों श्रील प्रभुपाद की ही पुस्तकें पढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हमने आज चर्चा किया। तो आज जो भी विषय पे हमने चर्चा किया या फिर कोई और विषय पर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और इसके बाद आप प्रश्न कर सकते हैं। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरे ना 2-3 ऐसे प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ क्या प्रभु जी? हाँ जी बोलिए। प्रभु जी सबसे पहला कि ये जो जितने भी आप ऐसे बोल रहे हैं ना प्रभुपाद की बुक्स, प्रभु जी इसकी कोई लिस्ट अकॉर्डिंग टू वो मिलेगी क्या? प्रभु जी मेरे पास बहुत पहले थी पर अब वो मुझे वो पिक्चर ही नहीं मिल रही है। उसमें लिखा था प्रभु जी बिगनर और फिर थोड़ा इंटरमीडिएट और एडवांस वैसे करके सारी बुक्स की लिस्ट। तो प्रभु जी ये वाली लिस्ट कहीं से मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, इंटरनेट पे मिल जाएगी, मैं आपको दे दूंगा, ये मिल जाएगी। जी। और और प्रभु जी अगर ऐसा भी ना हो तो मतलब कोई भी जैसे पूरी प्रॉपर एक लिस्ट मिल जाएगी, इतनी सारी बुक्स है जो मतलब रीडिंग करनी चाहिए हम लोगों को, तो प्रभु जी वो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा कि अगर वो लिस्ट हो जाए। हाँ हाँ, ये मिल जाएगी, ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी और मेरा सवाल ये था कि
प्रभु जी जैसे हमारे एम्बिशंस होते हैं, मैं कल भी प्रभु जी से ऐसे पूछ रही थी कि धीरे-धीरे भक्ति में आते-आते हमारे एम्बिशंस मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड के एम्बिशंस है वो कम होने लगते हैं और हमारे स्पिरिचुअल एम्बिशंस बढ़ने लगते हैं। लेकिन प्रभु जी बहुत बार मतलब मैं पर्सनली बहुत स्ट्रगल करती हूँ अपने आप को समझाने के लिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब प्रभु जी हम कभी भी किसी को ऐसे देखते हैं ना कि हमारा कोई मतलब साथ में कलीग हुआ या कोई क्लासमेट हुआ और प्रभु जी जब वो मटेरियल एम्बिशंस जो हमारे थे अगर उसको कोई वहाँ पे रीच कर रहा है, तो फिर से हमारे मन में वो डिज़ायर आने लगती है कि हम भी वो रीच करें। तो प्रभु जी मैंने आपका भी देखा कि आपने तो बहुत मतलब अच्छे जॉब वग़ैरह उन सब को छोड़कर आपने फिर मॉन्क की लाइफ़ को शुरू किया। तो प्रभु जी मैं हमेशा जानना चाहती हूँ हम इतना एम्बिशियस होते हैं उन सब पोज़ीशन में पहुँचने के लिए और प्रभु जी आपने वो पोज़ीशन ऐसे ही त्याग दिया। तो प्रभु जी इसके पीछे ऐसी क्या वो इंस्पिरेशन होती है या क्या होता है जिससे हमें भी मतलब वो प्रेरणा मिले कि भक्ति इज़ इम्पोर्टेंट हमें पता है पर हम फॉलो नहीं कर पाते प्रभु जी? मीना कुमारी का नाम सुना आपने? मीना कुमारी का जो मीना कुमारी का जिससे विवाह हुआ, शराब के नशे में इतना ज्यादा शराब इतना पीता था कि उसने मीना कुमारी को छोड़ दिया। मीना कुमारी इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन शराबियों का नशा ही ऐसा होता है। सारे शराबी ही थे और शराबियों के साथ रह करके हम भी शराबी बन गए, फिर मीना कुमारी छूट गई। है कि नहीं? इसी तरह से जैसे शराबी से कि बहुत शराब पीने की वजह की आदत पड़ जाती है, फिर वो छूट जाती है। फिर मीना कुमारी जब छूट जाती है तो दुनिया की कौन सी नौकरी, है कि नहीं? नौकरियां तो लोग मीना कुमारी के लिए छोड़ देते हैं, है कि नहीं? मैंने तो ऐसे लोगों को चेंज करते देखा, है कि नहीं? तो ये संघ का बहुत असर है। इतना भर दिया गया, इतना इतना भरते रहते थे रात दिन। हमारी ये, मैं इन्फोसिस में जब जॉब करता था तो हम स्टार्टिंग में, हमें जब प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ था तो सुबह लॉगिन करके मंदिर चले जाया करते थे 5 बजे। स्वाइप इन होता था, ऐसे उंगली स्वाइप करनी होती थी, करके फिर मंदिर चले जाया कर रात में 10 बजे आते थे, फिर स्वाइप आउट करते थे। सीधा, क्योंकि बेंच पे थे तो कोई काम तो था नहीं, केवल लॉग इन लॉग आउट करना था। दिन भर भक्तों के संग में ही रहना, दिन भर बस भगवान के बारे में ही सुनना, भक्तों के साथ प्रसाद पाना, बीच बीच में बोलना जय जय श्री राधे, हरि बोल, यही सब करते रहते थे। कोई इम्प्रेस कर होने का सवाल ही नहीं आता था, क्योंकि वो लोग हमको बड़े ओछे लगते थे। हमको लगता था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वाले, गूगल वाले तो हमारे साथ थे। वो लोग तो हमारे साथ वो भी जय जय श्री राधे कर रहे थे, तो हमें लगता था कि दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो इट इज जस्ट द इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बार बार ये शराबी, इतने शराबी मिलते गए, सब शराबी मिलते गए, हम भी शराबी बन गए। ऐसे ही बस होता है ना? तो आप भी ऐसे ही खूब सारा संग करेंगे। मान लो आपको संग वहां पर, क्योंकि आप स्त्री के शरीर में हैं, तो इस तरह से ब्रह्मचारियों और इनका संग इस तरह से नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आचार्यों के बारे में पढ़ना चाहिए। एक बुक है कंपेनियंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ऐसे ही आचार्यों के बारे में पढ़ के, और इन आचार्यों का बिल मंगल ठाकुर के बारे में पढ़ के, और मैंने उस दिन आपको कहानी सुनाई थी कि माधव दास जी की कहानी सुनाई थी, है ना? कि कैसे एक बार ऐसा हुआ कि माधव दास जी जो है रोज सारे वैष्णवों का उच्छिष्ट खाया करते थे। जहां भी पंगत लगती थी, सब पंगत का पत्तल जहां जाता था उसको कांच करके उसको खाया करते थे, और उसको भी भोग लगा के खाते थे। भगवान को सबका जूठा भोग लगाते थे और उसको खाते थे। एक दिन क्या हुआ, बिना भोग लगाए मुंह में डाल लिया, याद आ गया कि अरे भोग लगाया है। अब सोचे कि भोग लगाएं कि ना लगाएं, है ना? नहीं। और फिर उसके बाद अब रात से, सुबह से रात हो गई, भोग नहीं लगाया, मुंह में निवाला पड़ा हुआ था। सोच रहे थे कि क्या करें, भोग नहीं लगाएं, खा भी नहीं सकते, और अगर थूक देंगे तो वैष्णवों का उच्छिष्ट है।
भगवान प्रकट हुए, भगवान ने बोला मुंह के अंदर वाला मुझे दे दो, भोग भी लग जाएगा। ऐसे भक्तों के बारे में पढ़ के, बार बार पढ़ पढ़ के इतना विरह उत्पन्न हो जाएगा, हा राधे हा कृष्ण करके करके इन्फोसिस कंपनी में नाचने लगेंगे। ये पढ़ने की बात है, भावना की बात है। बहुत पहले मैंने साजन मूवी एक देखी थी, इतने ध्यान से देखी थी कि आज तक गाने से लेकर के स्टोरी से लेकर के एक एक सीन याद है। जाने कितने ध्यान से देखी थी, आज तक भागवत ऐसे नहीं पढ़ा। ये इंसान के ध्यान में कितनी शक्ति है, आपको मैं सुन करके हैरानी होगी। एक भोग लगाना या फिर भक्ति में जो भी कार्य है, एक भी कार्य अगर पूरी तन्मयता से किया जाए तो वो एक कार्य मात्र इतनी शक्ति रखता है कि हमको उसी समय उसी क्षण भगवत धाम लेके जा सकता है। तो ये तन्मयता पर निर्भर करता है, हाउ मच एक्सक्लूसिवली वी आर गिविंग टाइम टू कृष्णा, how much exclusively we are giving respect and importance to spiritual practices. And it is a matter of absorption as well as association. So we should take care of three things: association, absorption, and ashray. A for association, A for absorption, and A for ashray. Always remain in ashray of one or the other Vaishnava. Always remain in association of like-minded, enthusiastic devotees, and every aspect of spiritual life do with 100% absorption. Forget everything. Now is the opportunity to chant the names of the Lord, and this opportunity will never be given to me ever now. So these 2 hours are just my exclusive time of meeting with the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. And I will just utilize this with talking to Krishna and just seeing him and just enjoying his presence on my tongue. This is the level of absorption we should have. These are all, of course, words. To realize this will take at least 20 years. ठीक है माता जी, मुस्कान माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक और लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी जब हम कोई ऐसी चीजें रीड करते हैं तो प्रभु जी अभी भी ऐसा मेरे साथ होता है, प्रभु जी मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूं इधर, तो प्रभु जी समटाइम्स इट डजंट फील लाइक रियलिस्टिक, ऐसे लगता है ये तो हो ही नहीं सकता है। तो प्रभु जी एट दैट टाइम व्हाट शुड बी आवर, मतलब भाव क्या होना चाहिए प्रभु जी इन सब चीजों के तरफ, जब हमें ऐसा लगे दिस कांट बी रियल, मतलब वो साउंड ही नहीं कर रहा रियल जैसा। तो प्रभु जी ये मतलब मुझे पता है ये मेरी बुद्धि का ही प्रॉब्लम है कि मुझे समझ नहीं आती, लेकिन प्रभु जी इन सब चीजों से डील कैसे किया जाए जब ऐसा फील हो तो? हाँ, अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में अब जैसे आप हो तो या फिर जो भी भक्त होते हैं, सब भक्तों का एक्चुअली कुछ ना कुछ बैकग्राउंड सा होता है। तो एकाएक से हर दिन उसी कॉन्शियसनेस में रहना इतना आसान नहीं होता है। तो भक्तों को क्या करना चाहिए? एक तो सबसे बढ़िया तरीका है प्रार्थना करने से फिर से हमारी चेतना उस लेवल पे आ जाती है। फिर से हमको भगवान से प्रेयर करना चाहिए कि भगवान मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ, इसको मुझे समझने का की शक्ति दीजिएगा। और हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं तो भी हमें क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से कि भगवान सॉरी, अगली बार ट्राई करूंगी कि नहीं हो, लेकिन प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा, मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ। तो इस तरह से प्रार्थना करने से एकाएक से फिर से हम सतोगुण प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और वो सब चीजें हमें फिर से रिलेट करने लगते हैं। कई बार ऐसी चीजें लिखी होती है जैसे ब्रह्मा जी हैविंग 4 heads and all the gods are some or the other haphazard permutation combination of snakes and lizards and all those stuffs, and such demigods are all existing in Sanatan Dharma, and people are just pressed to believe on such things. And if you feel that it is all phantasmagoria, so
So you should read with those devotees who have faith. जब जो लोग श्रद्धावान हों उनके साथ बार बार पढ़ के, मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में जो श्रद्धा है वो ज्यादातर उन लोगों पर निर्भर करती है जो लोग हमारी श्रद्धा अभी इतनी ज्यादा कृष्ण पर नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा उन लोगों पर ज्यादा है जिन्होंने जो हमें ये बता रहे हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद या फिर जैसे प्रभु जी हैं इत्यादि, इनके वजह से हम पढ़ पाते हैं। ये हमारी इतनी श्रद्धा कृष्ण के प्रति कहाँ होती है। तो ठीक है, इसके लिए फिर हम प्रार्थना करना चाहिए। और अनरियलिस्टिक तो लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि वहां कहीं सांस लिया और इतने सारे ब्रह्मांड बन गए। लेकिन भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। और हमको ये देखना चाहिए, जब थोड़ा थोड़ा कभी कभी बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे मैं देखो अभी यहाँ देखता हूँ, ये बहुत बड़ा पहाड़ है। सोचिए ये पूरा पहाड़, यहाँ नीचे देखो नदी है, मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पर नीचे, यहाँ पर नदी है, एक पहाड़ है, व्यास नदी यहाँ बहती है, जहां मैं रह रहा हूँ उसके बगल में ही बहती है। तो इतना बड़ा नदी है देखो, और इसको कौन बहा रहा है? वहां से पानी आ रहा है, मेरे पास तक आता है, मैं रोज इसमें नहा सकता हूँ। किसने ये सिस्टम बनाया? भगवान कितने शक्तिशाली है। एक छोटे से बीज जो होता है उसको हमें बोना पड़ता है, फिर वो उगता है। पहाड़ों पे सारे जगह पर पेड़ उगे हुए हैं। अरे किसने ये पेड़ लगा दिए सारे? एक छोटा सा बीज होता है, उसके अंदर इतना बढ़िया साइंस है कि एक और पेड़ निकलेगा, उसके अंदर फिर से एक और पेड़ निकले, बीज निकलेगा, उसमें से फिर पेड़ निकलेगा। कितना बढ़िया विज्ञान है भगवान का, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। घास खा के दूध दे दे, ऐसी कोई सिस्टम है? कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता। केवल गाय भगवान ने ही बनाई है जो घास खाती है और दूध दे देती है। कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसको घास डाल दे और वो दूध निकाल दे। भगवान ही इतने शक्तिशाली है। इस संसार में भगवान के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए बहुत सारे कार्य हैं। आप देखो, किसी भक्त को देख करके बहुत प्रेम आता है हृदय में। माँ को देख करके इतना अच्छा लगता है, मम्मी जब पराठे बनाती हैं कितना अच्छा लगता है। वो जो प्रेम है वो कौन ये बनाता है? इन सबको देख करके हमें विश्वास होता है कि कोई ना कोई नियंता है जिसने ये सब रचना रची हुई है। हम लोग थोड़ा बहुत उसमें से रिसर्च कर ले रहे हैं। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिक लोग गए अफ्रीका में रिसर्च करने के लिए। तो वो चिड़ियों पर रिसर्च कर रहे थे, कुछ चिड़ियां ऊपर से गईं, उन्होंने लिखा कि ऑल बर्ड्स आर ब्लैक। थोड़ी देर बाद और कौवे गए, वहां से कौवे ही कौवे जा रहे थे, इन लोगों ने लिखा ऑल बर्ड्स आर ब्लैक, थ्योरी कंफर्म्ड। थोड़ी देर बाद और कौवे गए, वहां से इन लोगों ने कहा कि थ्योरी प्रूव्ड, द साइंटिस्ट हैज टू बी गिवन नोबेल प्राइज एंड द थ्योरी हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एनसीईआरटी बुक्स, ऑल बर्ड्स आर ब्लैक। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उस टेंट के ऊपर से एक सफेद चिड़िया गई। लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि डेटा इनकरेक्ट, काली होगी दिखी सफेद। थोड़ी देर बाद फिर से एक और सफेद चिड़िया गई। इन लोगों ने कहा थ्योरी टू बी रिवाइज्ड, ऑल बर्ड्स आर आइदर ब्लैक और व्हाइट। थोड़ी देर बाद एक और सफेद चिड़िया, दो चार और सफेद सफेद कबूतर गए। लोगों ने फिर थ्योरी रिवाइज कर दी, कहा कि साइंटिस्ट हैज टू बी गिवन नोबेल प्राइज फॉर रिवाइजिंग द थ्योरी दैट द बर्ड्स आर आइदर ब्लैक और व्हाइट। थोड़ी देर बाद उस टेंट के ऊपर से एक तोता चला गया। तो फिर क्या हुआ, फिर थ्योरी खराब हो गई है कि नहीं? कहने का मतलब ये है, हमारा जो देखने की दृष्टि, हम कितने छोटे हैं, ये छोटे से हैं हम। देखो ये धरती है, इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें भी हम पूरे जगह घूम नहीं पा रहे हैं। और फिर इतनी सारी पृथ्वियां, इतने भूलोक, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, भगवान कितने बड़े हैं। हमारा तो क्वेश्चन ही करने को नहीं बनता कि यार चार मुंह वाले लोग बनाते कैसे हो तुम? हमसे, मतलब हम तो क्वालिफाइड ही नहीं है प्रश्न पूछने के लिए कि हम एक इतने तुच्छ व्यक्ति हैं, हम कुछ है ही नहीं इतने बड़े ब्रह्मांड में, है कि नहीं? तो इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए हम बस एक छोटे से जीव हैं,
भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि है, क्या कैसे हो रहा है किसी को मालूम थोड़ी है, बॉडी में भी हमारे क्या हो रहा है। तो इस तरह से हमारे अंदर श्रद्धा आती है। ये सब दुनिया को देख करके, भगवत दृष्टि से देख करके भी श्रद्धा आती है, श्रद्धालु भक्तों का संग करके भी श्रद्धा आती है, और धीरे धीरे भक्ति का प्रैक्टिस करके भी धीरे धीरे श्रद्धा आ जाती है। तो कभी अगर फैंटास्टिक बहुत लगता है कि ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या है, तो फिर हमको इनके भी चीजों पे प्रश्न करना चाहिए। वैसे भी तो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं, एक बल्ब बना दिया किसी तरह से, किसी तरह बना दिया, और उसके बाद फिर उसमें नोबेल प्राइज ले लिया। यहाँ इतने साल से सूरज बना के बैठे हुए हैं, कोई देख ही नहीं रहा भगवान को, है कि नहीं? यू गेटिंग माय पॉइंट मुस्कान माता जी? यस यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गीतिका माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अभी तक सिर्फ सुना था कि श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए, आज आपने इतने अच्छे से समझाया कि उनकी इम्पोर्टेंस और हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ये बहुत अच्छे से समझ में आया प्रभु जी। प्रभु जी बस एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने अभी बताया कि हम तो अल्पबुद्धि हैं, अभी अभी का सुना ही हमें याद नहीं रहता, तो बस मेरे को ये पूछना था कि जब आपने अभी कुछ बताया था कि जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आई से कुछ आपने बताया था, और डी से डिस्कवरी, सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो डिस्कवर करते हैं, और थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो रियलाइजेशन होता है। तो हाँ, प्रजीव टाइम जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या वर्ड था, मैं भूल गई प्रजीव। फर्स्ट टाइम इज इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच प्रजीव, बस यही कंफर्म करना था। थैंक यू सो सो मच प्रजीव। हरे कृष्णा प्रजीव, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तरुणा माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी मेरे को कुछ कहना भी था और कुछ पूछना भी था। प्रभु जी पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे मुस्कान माता जी ने पूछा, प्रभु जी मैं बहुत कम समय हुआ है इसमें आए हुए, लेकिन फिर भी मैं प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रभु जी ऐसा या तो कुछ लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है प्रभु जी भक्ति, कुछ लोगों का मैं कहती हूँ ऊपर वाला एक टाइम रखता है प्रभु जी, उस मोमेंट पे जब आपको वो चेतना जगती है प्रभु जी, वो ऑन द स्पॉट जग जाती है। किसी को 40 इयर्स हो जाते हैं, किसी को 15 इयर्स में हो जाता है, किसी को टाइम लगता है। मेरा अपना प्रभु जी जैसे मैं बताऊं, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से भी होती हैं, जैसे माता जी किसी का, हाँ जी बोलिए। हाँ तो प्रभु जी जैसे कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में प्रभु जी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, लाइक ऐसे नहीं कि वर्स्ट वाले, लेकिन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और उसमें से प्रभु जी मैं अपने, आज मैं 40 इयर्स की हूँ, अपने उस एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकती हूँ प्रभु जी कि बहुत सारी चीजें सक्सेसफुल होते हुए देखी हैं और बहुत सारी चीजों में डाउनफॉल होते हुए देखा है, लेकिन प्रभु जी जो सेटिस्फेक्शन मैंने ये मोमेंट पे रियलाइज किया कि जो एक शांति, जो एक हैप्पीनेस, जो इससे जुड़ के, मतलब इस्कॉन से जुड़ के प्रभु जी, मैं भी बहुत मानती थी, पूजा पाठ बचपन से करती आ रही हूँ, थोड़ा बहुत जो बहुत मतलब करती आ रही हूँ, लेकिन एक जो कहते हैं ना अपने आप से जो चेतना दोबारा हमको बैठने के लिए मजबूर करती है, या मुझे दोबारा से मुझे ऐसा लगता है मैं बुक्स पढूं प्रभु जी, मैं बिल्कुल पढ़ने में, मतलब पढ़ने वाला भागने वाला जो बच्चा होता है ना, मैं वो हूँ सर प्रभु जी। कैसे पढ़ाई कंप्लीट करी है आपने वो मैं ही जानती हूँ, मतलब मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था प्रभु जी। अभी मैं जब बुक्स लाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते इतना पढ़ ली होती तो डॉक्टरेट हो जाती, मतलब इतना शौक प्रभु जी अंदर से वो एक आई है कि नहीं मुझे ये बुक पढ़ना है, मुझे भगवत गीता तो पढ़नी है, मुझे भागवतम तो पढ़नी है, और आप लोग जैसे नाम बताते हो तो ये भी ऑर्डर कर लूं। अभी क्या हुआ प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि मेरे मन में ऐसा भूचाल आ गया है। पहले तो मैं मुस्कान माता जी का वो जवाब देना चाहूंगी कि ये मोमेंट प्रभु जी अपने आप से जब क्लिक होता है तब वो उस बंदे की लाइफ पूरी चेंज कर देता है। दूसरा, शायद इतने एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं लिए होते हैं अभी कम लोगों ने, इसलिए समझ नहीं आता प्रभु जी, लेकिन जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी, बहुत कुछ देखा है प्रभु जी लाइफ में, और सक्सेस भी देखी, फेलियर भी देखा, अप्स एंड डाउन्स भी देखा, फैमिली भी देखा, आज मेरा हस्बैंड भी है, बच्चा भी है, सब कुछ है प्रभु जी आगे पीछे, और भगवान की दुआ सब सही चल रहा है। लेकिन हाँ प्रभु जी जो ऊपर नीचे जो सब चीजें आती हैं, वो शांति कुछ भी पालो प्रभु जी, इतने सारे पैसा कमाने के बाद, चीजें होने के बाद, लेकिन जो शांति इस चीज में है प्रभु जी, वो मैंने पर्सनली प्रभु जी कहीं नहीं पाई।
कभी नहीं मिली। इतना मतलब पार्टियां प्रभु जी, मतलब मेरे घर का ऐसा इतनी पार्टियां होना, इतना जाना, वो करना, बाहर की मटेरियल लाइफ में जीना, ऐसे दोस्त वैसे दोस्त, एक काम का नहीं होता प्रभु जी, एक पार्टी काम नहीं आती, एक पैसा काम नहीं आता, कितना भी पैसा कमा लो, वो गाड़ी खुशी नहीं देती प्रभु जी। जो शांति, जो सेटिस्फेक्शन और जो पीस ऑफ माइंड और एक आत्मा से परमात्मा का जो मिलन होता है ना प्रभु जी, वो जो इस्कॉन में है, मैंने कहीं नहीं पाया। दैट इज माई एक्सपीरियंस प्रभु जी। और ये मैं सच में, मतलब झूठा नहीं है प्रभु जी, सच में रियलाइज करके अंदर आया है, मतलब ये फेक नहीं है। मतलब मैंने अपने, क्योंकि मैंने वो वाली मटेरियल लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया है, तो मैं ये लाइफ को भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप कितना भी अच्छा हस्बैंड पाल लो, कितने भी अच्छे बच्चे कच्चे हो जाएं, परिवार को खुश कर लो, दुनिया में कुछ भी कर लो प्रभु जी, कोई खुश होने वाला नहीं है। मर के जहान मुल्तान चले जाओ, लेकिन अगर आपने भगवान की बुक्स पढ़ रहे हो तो इसका रिकॉर्ड ऊपर जा रहा है। और वो मोमेंट आपको ना प्रभु जी, वो अपने आप समझ में आने लग जाएगा, वो खुशी आपको मिलने लग जाएगी। वो अपने आप से, पहले मैं सोचती थी मैं बुक पढ़ पाऊंगी, मैं क्लास अटेंड कर पाऊंगी, मैं मेरे में क्या इतनी शक्ति है प्रभु जी। मैंने रियलाइज किया कि ऑटोमेटिकली मेरे क्वेश्चन के इतने सारे क्वेश्चन थे, जवाब मिल पाएंगे। ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू किया, क्लास ज्वाइन करनी शुरू करी, ऑटोमेटिकली आंसर प्रभु जी, जब मैं सोचती हूँ मन में, उसका क्वेश्चन मुझे उस दिन में मिल जाता है, आंसर अपने आप ही मिल जाता है, कोई दे नहीं दे, मुझे अपने आप उसका आंसर मिल जाता है, मैं अपने आप आगे बढ़ने लग जाती हूँ। मुझे वो कहते हैं ना, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान की कृपा के ऊपर है, और जिस दिन भगवान की कृपा हम पे होगी, वो अपने आप से आगे ले जाएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दूसरा प्रभु जी, पहला मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके लाइफ में, जैसे इतना अब मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड उसमें, लेकिन हाँ, जैसे माता जी ने बताया आप जॉब करते प्रभु जी, वो क्या दैट मोमेंट, व्हाट वाज दैट मोमेंट एट दैट पॉइंट यू थिंक कि नो, मतलब बिल्कुल फिक्स, जिस दिन आपने सोचा कि नहीं, मुझे अब ये नहीं, अब मुझे ये करना है, मतलब वो आप इधर थे, वही राम और काम वो चल रहा था आपका क्या, मतलब व्हाट वाज योर लाइक दैट परसेप्शन ऑफ माइंड की एट दैट मोमेंट कि आई विल जस्ट नो, अब मैं बंद करके इसको शुरू करूंगा, वो क्या था प्रभु जी? और दूसरा मुझे ये गाइड कर दीजिए प्रभु जी कि मुझे लगता है श्लोका भी पढ़ूं, ये बुक भी पढ़ूं, ये भी पढ़ूं, क्या पढ़ूं पहले, धीरे धीरे प्रभु जी, कौन सी बुक पहले खत्म करूं, दूसरा तीसरा, ऐसे क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी कर लंबा हो गया है तो। नहीं, कोई बात नहीं। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे देते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आनंद प्रभु जी जो भी पढ़ाते हैं और जो भी करवा रहे हैं, ये बस आप ध्यान पूर्वक करते रहिए और इसमें पूरा रुचि लीजिए, बस इतना पर्याप्त है। इसमें सब कुछ आ जाता है और सब कुछ इसमें हो जाता है। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को किसी ने कहा कि महाराज, कोई ऐसी वर्कशॉप हो, कुछ हो जिससे कि पता चले कि कैसे भक्ति में, कैसे जो है ये बढ़ना है, कैसे मेरा जप ठीक हो, कैसे मेरा रीडिंग ठीक हो, कोई वर्कशॉप है क्या? तो गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा, ये जो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम आप करते हो 5 बजे से 9 बजे तक, यही वर्कशॉप है, ये रोज होती है इस्कॉन में फ्री में। इसी को करो, इसी से सब हो जाए। तो आपको कुछ भी करने की, हाँ, तो ये बस आप करते रहिए, इससे हो जाएगा। और रही मेरे उसके प्रश्न के उत्तर, तो मेरा कोई ऐसा नहीं था। हमारा इतनी सारी सेवाएं बढ़ गई थी। मैं सुबह एस्पायर वहाँ पर कोचिंग में लेक्चर के लिए जाता था 6:30 बजे, फिर उसके बाद आता था, ऑफिस जाता था, फिर 11-12 बजे तक ऑफिस ख़त्म हो जाता था, फिर उसके बाद कांग्रेगेशन के लिए लेक्चर के लिए जाता था, शाम को फिर IIT हैदराबाद जाता था। इतना बिजी था कि मुझे टाइम बहुत चाहिए था, इसलिए नौकरी छोड़ दी। मतलब इसलिए नहीं था कि मतलब वैराग्य आ गया, पर टाइम कम बचता था नौकरी के लिए, इसलिए छोड़ दिया। नौकरी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि पैसे घर में थे, तो वैसा कुछ जरूरत नहीं थी, तो वैसा कुछ नहीं था। जस्ट टू सेव टाइम आई लेफ्ट माय जॉब एंड जॉइंड एज तो इट वाज नॉट लाइक समथिंग, कोई चमक गया, बहुत बड़ा कुछ हो गया और एकाएक से वैराग्य आ गया, ऐसा कुछ तो नहीं था। बस यही था कि इतनी सेवाएं बढ़ गई थी भगवान की, तो हमको लगा कि अब टाइम बचाना पड़ेगा, नौकरी में जाने में फिर टाइम जाता है, तो इसलिए चलो यहीं पर है ना माता जी। ठीक है, ओके। चांदनी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? चांदनी त्यागी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रिंस हूँ, उनकी आईडी से लॉगिन हूँ।
अच्छा, हाँ, प्रिंस प्रभु, हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि ऑर्डर पता कर लेंगे कि कौन सी करनी, किस तरह पढ़नी है बुक्स। हाँ जी, हाँ जी। बिगनर, क्योंकि मैं भी बहुत अभी रिसेंट ही बिगनर हूँ, बहुत अभी 1-2 महीने से ही। अच्छा, प्रभु अच्छा। जी एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम जैसे कुछ अलग बुक्स अगर नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ी कंपैरेटिव हमें समझ नहीं आएगी क्या है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं टीचर हूँ ऐसे, तो जनरली स्कूल में पहले मैं प्याज या लहसुन सब खाता था, अभी जल्दी से ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी आज ऐसा हुआ कि 2 वीक्स के बाद हम लोग साथ बैठे खाना खा रहे थे, कह रहे ऐसा क्यों, जरूरत नहीं है कि भक्ति तो ऐसे होती है, मन से होती है, वो लोग भक्ति करते हैं, पता नहीं वो कर्म, मैं ऐसा कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कर्म कांड वाली है, वो लोग नॉन वेज भी खाते हैं तो वो भक्ति कहते हैं। तो मैंने कहा कुछ रूल्स होते हैं, अगर हम किसी चीज को फॉलो करते हैं तो हमें करनी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने आंसर नहीं दिया, मुझे लगा, मुझे जैसे अच्छे प्रभु जी ने बोला कि ज्यादा प्रीच नहीं करना है किसी को, क्योंकि अभी जैसे मैं बिगिनर हूँ तो शायद। तो मैंने कहा कि एक कोई भी है, अगर मैं जिस तरह से भी वहां फॉलो कर रहा हूँ और मैं अपने ऐसे नहीं, कंपल्शन हो रही है मेरे ऊपर, मैं अपनी मर्जी से नहीं खा रहा हूँ, तो कह रहे नहीं नहीं, ऐसे मत अरे खाओ यार, इससे क्या होगा सर, ये ऐसे नहीं होता कि इससे भक्ति नहीं होगी तुम्हारी। मैं कि नहीं, मैंने अपने मन से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कोई मुझे कंपेल कर रहा है कि तुम्हें खाना नहीं है। हाँ, तो अगर हम दूसरी बुक्स नहीं पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, तो इस तरह कंपैरिजन वाली कोई बात कभी होती है ऐसे, जो सांसारिक लोगों के बीच में बैठ के भौतिक, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो हमें सिर्फ एक ही बुक के बारे में पता होगा। हाँ। आई होप कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, हाँ, हाँ। शुरू में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। शुरू में हमको जो भी हमारे जो गाइड हो, जो भी बताएं वैसा हमें करना चाहिए। कुछ समय जब हम पढ़ लेंगे तब हमारे अंदर ये विवेक आ जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और ये सही सिद्धांत है। बड़े से कचरे के डिब्बे में से सही सिद्धांत को कैसे निकालना है, ये सब आपको विवेक आ जाएगा। तब फिर आपको ये भी करना चाहिए। तो अगर शुरू में जरूरत पड़े इन सिद्धांतों की तो क्या करना चाहिए? तो यही करना चाहिए जो आपने किया, हैंड रेज करके पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए ऐसे लोगों से जिन्होंने कचरे भी देखे हैं और उसमें से हीरे मोती निकाल करके उन्होंने इकट्ठा किया है और वो प्रभावित नहीं हुए, तो वो आपको बता देंगे। हम अगर कचरे में जाके अगर खोजेंगे कुछ, मान लो कोई किताब है, जैसे कि कोई नॉवेल है यू कैन विन, शिव खेड़ा जी की, उसमें से एक चीज अच्छी निकलेगी, 2 लाख चीजें खराब निकलेंगी, तो हम वो 2 लाख पकड़ के आ जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि किसी ऐसे वैष्णव से पूछा जाए जो कि वो 2 लाख में बिना फंसे वो एक चीज को निकाल ले। तो इसीलिए शुरू में हमको भक्ति में कुछ साल हमको यही करना चाहिए कि हम गाइडेंस में ही रहें, और कुछ समय पढ़ लेंगे तो हमारा विवेक शक्ति अच्छी हो जाएगी, फिर हमें करना चाहिए। और रही बात तत्कालीन, आपको लॉजिक्स चाहिए। जैसे आपने कहा कि प्याज लहसुन, भक्ति तो अपने हृदय से होती है, तो फिर अगर भक्ति हो सकती है तो परिवार में प्रेम भी तो प्याज लहसुन पे रुका नहीं है। परिवार का प्रेम भी प्याज लहसुन पे कैसे रुक गया है? फिर वो भी तो हृदय से ही हो सकता है। तो उसी प्रेम की, तो प्याज लहसुन फिर नहीं खाओ, बल्कि है कि नहीं, है ना? नहीं, इस तरह से और भी बहुत सारे लॉजिक हैं क्यों प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और वैसे ये बात सही है, चिंतन गौरव भी सही कह रहे हैं कि घर में बहुत ज्यादा नहीं, घर में उसका करने का हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा था, ह्यूमिलिटी एंड डिटर्मिनेशन। आप करो अपने मन की, दैट इज डिटर्मिनेशन। उनसे न झगड़ो, दैट इज ह्यूमिलिटी। आप विनम्र रहो, और जो आपको करना है वो ठीक है, मेरी दाल आप अलग बना दीजिए, मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं वैसे खा लूंगा। 3 दिन बनाएंगी मम्मी, पत्नी बनाएगी, फिर उसके बाद चाहेगी चलो यार मैं भी वही खा लेती हूँ। कुछ दिन में फिर बदल जाते हैं, है ना? कभी कभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों में और वैष्णवों के संग में उनको ले जाने से सुकृति उनकी बढ़ती है, तो फिर वो आपको हाँ बोलना ज्यादा कर देंगे। अगर उनको यात्रा वात्रा में लेते जाते रहेंगे या कुछ और ऐसे प्रसाद उनको खिलाते रहेंगे, मंदिर से ले जाके या कहीं से भी थोड़ा बहुत खूब प्रसाद खाते रहेंगे ना, कुछ दिन बाद जिन चीजों के लिए वो ना करते हैं वो हाँ करने लगेंगे। प्रसाद का बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है प्रिंस प्रभु। जी प्रभु जी, प्रभु जी ये मैंने घर के लिए नहीं, मैंने वहां बोला था अपने जो कोलीग्स है ना उनके बारे में बोला था। अच्छा, कलीग्स के लिए। हाँ हाँ, अच्छा। वो सब मैक्सिमम लोग उसमें ऐसे हैं जो नॉन वेज और ये सब खाते हैं, और तो उनके लिए था कि मैं उनके साथ बैठ के खा रहा था ना आज। तो हाँ, क्योंकि कभी बैठना पड़ता है, फिर अलग बैठते हैं तो बोलते हैं कि अलग ही खाते हो रोज। अब मैंने कैसे बताऊं कि अब मैं सिर्फ भगवान को भोग लगा खाता हूँ ये वो, तो उनको लगने लगा तो नहीं क्या अलग ही चला गया, अगर ऐसा नहीं होती, ये हाँ, अजीब तुम ऐसे करने लगे कि पढ़े यार, क्या अजीब बात है।
भक्ति तो मन से थे, वो उनके लिए बता रहा था मैं। मेरे घर में तो हो गया है कि ऐसे खाना अच्छा, बनता है। ठीक है फिर थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर दैट ठीक अमेजिंग है। लेक्चर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है। हम्म, जैसे प्याज लहसुन हम खाते ही नहीं है, वो चार नेम बना रखे हैं, हाँ और हाँ। जबरदस्ती किसी ने मुझसे कहा है, ऐसे बच्चे ने या किसी ने कि थोड़ा चाह के देखो, तो मेरा नेम बिगड़ गया प्रभु जी। जबरदस्ती ऐसे डाल दिया मुंह में एक चम्मच, ऐसे तो मेरा नेम बिगड़ गया प्रभु जी। चलो, ऐसे नियम तो बिगड़ जाता है, लेकिन इतना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हमको देखना चाहिए कि ऐसा हमसे ना हो। ऐसा क्यों हो भाई, है ना? नहीं, ऐसे कुछ भक्त ऐसे होते हैं, देखते हैं कि बर्गर आ गया तो बीच में से प्याज निकाल के खा लेते। नहीं प्रभु जी, तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मतलब जबरदस्ती में बच्चों ने क्या कि देखो हमने एक चम्मच आपके मुंह में डाल दिया, अब तो आपका नेम बिगड़ गया। तो प्रभु जी वो बिगड़ गया मेरा मामला। अब इतना भी नहीं स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी हंसी हमको के डाल दिया कोशिश ना, यही हंस हंस करना के। चाहिए कि हाँ। लेकिन अभी महाराज पूछेंगे तो फिर बताना पड़ेगा ना, क्योंकि दीक्षा के लिए जब पूछते हैं तो एक बार एक भक्त ने बोल दिया था कि भाई मैं टीवी नहीं देखता हूँ। तो महाराज ने कहा कि अच्छा, आप टीवी बिल्कुल नहीं देखते? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं कभी भी बस कभी मतलब बहुत हल्का हो तो न्यूज देख लेता हूँ। तो महाराज ने कहा लेकिन कभी कभी तो अच्छे सीरियल भी तो आते हैं। तो बोलते हाँ महाराज, कभी कभी ऐसे अगर मान लो देखना हो तो रामायण वगैरह देख लिया, नहीं तो वैसे नहीं देखते। तो फिर उन्होंने कहा लेकिन चलो रामायण वगैरह भी, पर कुछ सीरियल भी तो अच्छे होते हैं, वैसे कुछ शिक्षाप्रद होते हैं। हाँ महाराज, कभी मान लो अगर देख लिया तो एक दो कभी देख लेते हैं। तो महाराज ने कहा आप टीवी देखते हैं, आप मत लीजिए अभी दीक्षा। प्रभु जी मैंने मन महाराज से नहीं खाया, वो महाराज जबरदस्ती मैंने डाल दिया। अब मैं महाराज क्या करूं? हमको उगलवा देते हैं सारा सच इंटरव्यू में। लेकिन खैर, अब आपका जो केस है वो आप आनंद प्रभु जी से डिस्कस कर लीजिएगा। कभी कभी 4 नियम में या फिर जो भी नियम है, इसमें थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ हो जाती है तो हमको अपने शिक्षा गुरु को बता देना चाहिए कि प्रभु जी ऐसे ऐसे था, गड़बड़ हो गया था, तो दैट विल बी अकोमोडेटेड। प्रभु जी मैंने मन से नहीं खाया, मैंने बहुत जबरदस्ती, वो हंसी में बच्चों होते हैं ना पीछे पड़ जाते हैं हाँ कि जी, देखो देखो हमने तुम्हारा ने, वैसे मैं पूरा फॉलो करती हूँ, कुछ नहीं खाती। हाँ ठीक है। तो अब आगे गुस्सा से आप है। ध्यान रखिएगा बस, और क्या। ठीक है, आगे से ध्यान रखिए, ठीक है ना? हरे कृष्णा कृष्ण। ठीक है, ओके माता जी। निशा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हाँ जी माता जी बोलिए। सॉरी प्रभु जी, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है प्रभु जी पर। हाँ जी बोलिए। बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी मेरा प्रश्न था, प्लीज प्रभु जी, प्रभु जी मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि कभी कभी प्रभु जी ऐसे भक्ति में ना बहुत ज्यादा अधीर हो जाते हैं प्रभु जी, धैर्य नहीं रख पाते। जिस प्रभु जी हम मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज है प्रभु जी, बहुत सारी मतलब भक्ति में बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए, और प्रभु जी खासकर जैसे हम अभी स्टूडेंट लाइफ में प्रभु जी, तो फिर बड़ा डिफिकल्ट लगता है प्रभु जी, मतलब दोनों चीजों को मैनेज करना कि इतना सब कुछ है, कहाँ से शुरू करें। तो प्रभु जी ऐसे मतलब हमेशा कंफ्यूज्ड सी स्टेट में, मतलब मैं अपनी बात करूं प्रभु जी, रहती हूँ। तो प्रभु जी इसके लिए क्या करा जाए, कैसे एक प्लान उसमें मतलब हम अपनी स्टडीज को भी और भक्ति को भी प्रभु जी चलाएं, मतलब ताकि थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिले, नहीं कुछ मतलब चीजें ठीक हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, और एक मतलब प्रभु जी जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक या डिसिप्लिन मतलब मैनर में हम थोड़ा आगे बढ़ पाए प्रभु जी। हरे कृष्ण ये जो प्रणाम। ये जो स्ट्रेस हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि आपका एक्चुअली आप वृंदा माता जी और इन लोगों के टच में रही, इसलिए आपको लगता है कि मुझे भक्ति में भी बहुत आगे बढ़ना है, और प्रभु जी की, आनंद प्रभु जी की भी आपके ऊपर कृपा है, तो इस वजह से आपको लगता है कि नहीं मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो इसलिए आपको हमेशा ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें करनी है आपको, और फिर आपकी पढ़ाई भी है, MBBS कर रहे हैं आप महान से, तो आपको वहाँ पे भी पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता होगा। तो जब जैसे पढ़ाई का कुछ मिनिमम कोटा मतलब डिसाइड करके और एक डायनामिक सा बैलेंस बनाना चाहिए। मैं ऐसे करता था जब मैं पढ़ाई करता था,
तो एग्जाम से 20 दिन पहले मैं किताब लेके ही लटका के घूमता था और उन लोगों के साथ रहता था जो टॉपर्स थे, और हमेशा उनके साथ रहना, बार बार उनको बोलना भाई तो 2 मिनट यार ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देना, अरे थोड़ा सा यार, ऐसे ऐसे करके 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 कई बार तो उनसे भी अच्छे नंबर आते थे जो क्लास के टॉपर्स होते थे। लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं देता था, केवल एग्जाम के टाइम पे। अब इंजीनियरिंग में ऐसा होता था, एग्जाम के टाइम पे बहुत टाइम देता था और बाकी टाइम गुरु पूजा, भागवतम क्लास, महाप्रसाद, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सब यही सब करते थे, है ना। नहीं तो आपके अंदर ये दोनों ये प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको ऐसे भक्तों का संग मिला है जो बहुत उत्साहित है भक्ति में। तो आपको लगता है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत कुछ करना है, और आपको ये भी लग रहा है कि मेरा पढ़ाई वगैरह भी है। तो वो साइकिल वाला एग्जाम्पल प्रभु जी बताते हैं कि जैसे साइकिल चलाते हैं, कभी इधर वाले पेडल को ज़्यादा बढ़ा लो, कभी इधर वाले को। जब एग्जाम टाइम आ जाए तो उसी पर फोकस रखो, किताब ही पढ़ो, सब कुछ वही करो, और जब इधर टाइम आ जाए तो इधर ज़्यादा टाइम दे दो। इस तरह से डायनेमिक बैलेंस करो। एक और तरीका है जिससे कि स्पिरिचुअल लाइफ में कन्फ्यूजन दूर होता है। कन्फ्यूजन का मतलब ये है कि इतनी सारी चीजें हैं, वेयर एम आई गोइंग, कुछ तो हमको क्या करना चाहिए। वी शुड सेट अप मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, ईयरली टारगेट्स, है ना। ऐसे कुछ टारगेट्स बनाने चाहिए कि इस साल मैं करताल बजाना सीख लूंगी। अच्छा, इस साल मैं ऐसा करती हूँ कि मैं श्रील प्रभुपाद की ये 6 बुक्स मैं पढ़ डालूंगी, इस साल मैं ये कर लूंगी। फिर हम उस टारगेट्स में हम थोड़ा सा हम प्लान बना के अगर रखेंगे ना, तो जब हमारे पास ये प्लान रहेगा कुछ बुक्स पढ़ने का, रीडिंग करने का और वैष्णव गीतों को याद करने का, और लेक्चर्स सुनने का, तो इसका जब हम एक टारगेट बना के रखेंगे तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके हमको कॉन्फिडेंस आता रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थोड़ा सा कर लेंगे तो उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हमको लगेगा नहीं ठीक है, मैंने अपना स्टेप आज का कर लिया है। सो हार्ड वर्क गिव्स कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क एंड प्लानिंग गिव्स कॉन्फिडेंस एंड इट रिड्यूसेस इनसिक्योरिटी एंड डाउट। प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग करने से इनसिक्योरिटी और डाउट जो है चली जाती है। जब आप प्लान करते हैं और इस प्लान में अगर प्रार्थना को डाल देंगे तो फिर तो 100% इनसिक्योरिटी चली जाती है ना। नहीं, ऐसी एक कहावत है, सुना है मैंने कि बस हर एक प्लान के साथ थोड़ी प्रार्थना अगर हम जोड़ दें तो वो सक्सेसफुल तो होगा ही होगा प्लान जो भी इस प्लान बनाते हैं उसमें अगर प्रार्थना जोड़ दें तो वो प्लान पक्का सक्सेसफुल होगा। आप तो डिवोशनल हार्ट की हो, इस वजह से आपके लिए थोड़ा सा वैष्णव जो होता है वो थोड़ा सा ये भय करता रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अनक्वालिफाइड हूँ, मैं इसलिए इस तरह से आपका नेचर भी वैसा है। लेकिन आप थोड़ा सा प्लान करके रखेंगे तो आपको बहुत सिक्योरिटी महसूस होगी। और दूसरा ये है डायनेमिक बैलेंस बना के रखना चाहिए, जब उसमें जरूरत हो तो उसमें कर लें, जब इसमें जरूरत हो इसमें कर लें। और तीसरी चीज ये भी है कि आपको स्पेशली जैसे आप हो, जैसा मैंने आपको ऑब्जर्व किया है जब आप कुल्लू से थे और शुरू से ही मैंने आपको देखा है, तो जैसा आपका पर्सनली मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सही जगह पर हैं और यहाँ वैष्णवों का संग मिल रहा है, आनंद प्रभु जी हैं, वृंदा माता जी हैं, तो ये सब के केयर में आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, बस जो ये बता रहे हैं इनके साथ रह रहे हैं, जहाँ भी जो भी ये कर रहे हैं बस रह रहे हैं, इतने करने मात्र से ही आप वैसे ही भगवत धाम जा सकते हैं, है कि नहीं। आपको कुछ विशेष करने की ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जिनके कुछ अनर्थ ज़्यादा होते हैं या जिनके रजोगुण ज़्यादा हैं या फिर कुछ और है, उनके लिए हाँ ये बात सही है, कुछ और भी चीज़ करना चाहिए। मैं उतना डिटेल में जानता भी नहीं आपको, तो ये आप उनको डिस्कस कर सकते हैं वृंदा माता जी को, कि जो आपके कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको डिस्कस करके वो भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मुझे ये 3 चीज़ें लगती हैं, आप अगर करें तो अच्छा रहेगा। एक तो प्लान कर लें, दूसरा डायनेमिक बैलेंस बना के रखें, प्लान विथ प्रेयर and put up a dynamic balance,
जब पढ़ाई का टाइम हो तो 20 दिन भूल जाएं, बस माला 16 माला करके बाकी सब कुछ भूल जाओ, बस 22 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे माला, बस और कुछ भी नहीं, दुनिया भूल करके एग्जाम आया तो बस। और जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद कृष्णा फिर एकदम फोकस करना है ना। और तीसरा चीज ये है कि आप जो है आपको ज्यादा चिंता करने की, साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार ऐसा मैं समझता हूँ, ज्यादा चिंता की, जैसे ही वृंदा माता जी और ये सब भक्त लोग जहाँ भी जाते हैं, वैष्णवियाँ जो हैं ये सब करती हैं, आप अपना करेंगे तो आप बहुत आसानी से भगवत धाम सबके साथ ही चले जाएंगे। ठीक है निशा माता जी? ओके ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। सब भक्तों का सोने का तो समय हो गया। मेहुल प्रभु अभी आप इसको कोऑर्डिनेट करिए, मैं चलता हूँ। है हमारे प्रभु जी लोग हैं, ये देखो हमारे पोस्टर लेके आ गए हैं। ये हमारा यहाँ पे एक नया इवेंट हो रहा है, उसका पोस्टर आ गया है तो वो डिस्कशन करने के लिए 1 घंटे से बैठे हुए, मैं अभी चलता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की। अच्छा, भुवन दत्त प्रभु और नरेश प्रभु ने भी हाथ उठा दिया। भुवन दत्त प्रभु, यू वांट टू आस्क समथिंग? हरे कृष्णा प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। आज आप आए, आपका जो आपके मुखावृंद से जो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी मैं आपसे एक प्रश्न चाहता है, तो मेरा अपना प्रश्न चाहिए। जब तक हमारे अंदर पाप रहते हैं तब तक हम भक्ति के अंदर पहली बात तो बढ़ नहीं पाते, और जैसे जैसे हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा क्या है, पाप की पूरी छुड़ जाती है हमसे, यानी पाप खत्म से हमारा और भक्ति के अंदर अटैचमेंट। तो क्या होता है, जैसे तो अपना थोड़ा टीका लगा तो वो चीज थोड़ी सी हमारी हो जाती है, टीका लगा अपना तिलक लगा हमें आपकी थोड़ी आवाज बहुत मतलब सुनाई नहीं दे रही, क्वेश्चन का अभी उत्तर नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, तो बहुत अभी ठीक आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अब ठीक आ रही है। क्या किया आपने? हाँ, तो जैसे कि बहुत से भक्ति के अंदर जैसे हम रहते हैं तो हमारे अनर्थ इतने हमारे अंदर रहते हैं कि हम कुछ भी, यानी कि भक्ति से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसमें थोड़ा सा शाइनेस रहती है, जैसे कि तिलक लगाने में थोड़ा शर्माते हैं। पर जैसे जैसे हम भक्तों का संग करते हैं और शुद्ध भक्तों का संग स्पेशली करते हैं तो हमारे अंदर जो है अनर्थ और जो पाप है वो धुलते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है प्रभु जी की, जो हमारे अंदर ये चीजें, डर का जो भाव रहता है, फियर मोड जो रहता है कि हाँ तिलक लगाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, हम धोती कुर्ता कैसे पहन के जाएंगे टेम्पल में, तो ये चीजें धीरे 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 करके पता चलनी शुरू हो जाती है कि हाँ एक्चुअल में जब हम मंदिर जाएं या वैष्णव का संग करें या कीर्तन में जाएं तो ये वैष्णव ड्रेस पहने तो बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा आनंद प्राप्त होता है। तो ये धीरे धीरे प्रभु जी मेरे अंदर भी जो थी थोड़ी बहुत जो शाइनेस थी वो खत्म हो गई, हिचक खत्म हो गई। तो जी मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि क्या भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति में करते हुए ऐसे भी कुछ भक्त होते हैं जो खुद तो चाहते हैं हम बहुत अच्छी भक्ति करें पर हमारा फैमिली के मेंबर इसमें ना जुड़े या हमारे कोई और ना जुड़े, ऐसा भी होता है क्या? कुछ तो डिवोटीज सोचते हैं इस तरीके का, या और इसमें भी क्या उनके कुछ अनर्थ होते हैं जो इस कारण वो सोचते हैं? थोड़ा प्लीज इसका मेरे को आंसर चाहिए। इतना शुरू शुरू में इतना अनर्थ और इतना नहीं कहेंगे। हर एक भक्त धीरे धीरे परिष्कार होता है उसका, है ना। मम्मी पापा को भक्त नहीं बनाना चाहते, थोड़ा डरते हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे सब शुद्ध हो जाते हैं। ये इस्कॉन संस्था में सभी धीरे धीरे आपस में शुद्ध हो जाते हैं, तो इसलिए अब इसको इतना बड़ा अनर्थ नहीं कहेंगे। शुरू शुरू में भक्ति में हमको डूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमें जो बताया जा रहा है उसको करना चाहिए। बाकी कोई भक्त अगर ऐसे हैं जो छिपाते हैं या किसी को नहीं बताते तो इसको इतना बड़ा अनर्थ नहीं कह सकते कि अरे वो क्यों अपने घर वालों को भक्त नहीं बना रहे हैं। ठीक है, नहीं बन रहे हैं, क्या करें, अब वो तो खुद कर रहे हैं, है ना। नहीं तो कोई नहीं बना रहे हैं तो वो इतना बड़ा अनर्थ नहीं कहेंगे। इसलिए उनका ज्यादा हमको किसी और का दोष नहीं देखना चाहिए, अपना खुद का ही दोष देखना चाहिए। स्व दोष दर्शन करने से हम विनम्र बनते हैं, है कि नहीं। ठीक है भुवन दत्त प्रभु, अच्छे प्रश्न पूछते हो। थैंक यू, हरे कृष्ण।
ठीक है, अभी बहुत समय हो गया। नरेश प्रभु का हाथ उठा था पर अभी वो नहीं है, तो चलो ठीक है, अभी सो जाते हैं हम लोग। यहाँ हमारा मीटिंग होगा अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा